जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, मैनू आज्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सकां। गुरु महाराज जी, थोड़ा शुकराना कर सकां। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी, मैं तो ਉਹੀ बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो। गुरु महाराज जी, मेरी जुबान तो ਉਹੀ शब्द निकलन गुरु महाराज जी जो थोड़ी रजा च होन। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी, इस तो बाद मैं कुछ भी नहीं चाहती। मैं थोड़ी बड़ियाई करना चाहती हूँ बस। गुरु महाराज जी, थोड़े गुणगान करना चाहती हूँ। गुरु महाराज जी, मैं संगत ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, जानबूझ के गलती नहीं करते। गुरु महाराज जी, बहुत कोशिश यही रहती है बट गुरु महाराज जी फिर भी गलतियां तो गलतियां ही हैं और गलतियां हो ही जाती ने। गुरु महाराज जी, माफ़ी देना उस गलतियां लिए पूरी संगत वालों माफ़ी मांगती हैं। गुरु महाराज जी, मैं गुरु महाराज जी मैनू आज्ञा दो। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी, थोड़ा बहुत बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम शुकराना। गुरु महाराज जी, तुसी साडा हथ फड़िया। गुरु महाराज जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਸਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੰਨੇ ਕਿਊਟ ਗੱਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਮੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇਚਰ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਨਿਮਾਣੇ ਇੰਨੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਸਕੀਏ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਹਰ ਹਰ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਵੀ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਭ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ 360 ਡਿਗਰੀ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਅੱਜ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਗੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਚਿੱਲਮ ਚਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁੱਖ ਹਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਰੋ ਧੋ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਦੇਖੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਊਗੀ ਪਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਟਵਾਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਟਵਾਊਂਗਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਜਦ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ 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 ਆਸਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਲੇ, ਬਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਲਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੋਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਨਾਲ ਉੱਠੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ ਔਰ ਜਦ ਉੱਠੋਗੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੌਰੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੋਟ ਤੇ ਉੱਠੋਗੇ, ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਠੋਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨੇ, ਫਿਰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਬਸ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਣਦੇਖੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਅਣਦੇਖੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਪਾਉ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਕਨ 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 ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु महाराज जी हुण मैनू आग्या दो इस सत्संग तो, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਜਾਨੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
सर्वदा भला करना गुरु महाराज जी। हर किसी ते अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। गुरु जी की संगत कभी दुखी नहीं रह सकती। गुरुपा के आशीर्वाद है, गुरुपा के आशीर्वाद से हम सब सुखी है। इसीलिए गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना शेयर करती हूँ। ओ उसके पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, आप भी मेरे साथ करोगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, प्राची आंटी जी, शेर शुक्राना शेयर करते मेरे से कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना कुछ गलती होगी तो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से जब से जुड़ी हूँ तभी से आज तक गुरु जी ने बहुत 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 कुछ किया है मेरे परिवार के लिए। सभी की पहले तो हेल्थ अच्छी की है, सभी के कष्ट काटे, ड्रीम में भी कष्ट काटे हैं। और जो ब्लैक मैजिक का जो चल रहा है, जो कर रहे हैं, उसके भी बहुत कुछ गुरुपा ने निकाल दिया है। तो उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँगी वो कम पड़ जाएगा। बेटा बेटी सबके लिए भी गुरुपा ने एक एक परिवार के एक एक सदस्य का गुरु जी ने ध्यान रख के ड्रीम में भी कष्ट काटे और हेल्थ भी अच्छी की है। सभी का ध्यान रखा है और रखते भी है, हर पल ध्यान रखते हैं, हर पल अंग संग रहते हैं। तो उसके लिए भी गुरुपा आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर रोज़ एक नई सुबह दिखाने के लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर सांस में शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, बहुत कुछ काम ऐसे हैं अभी तक हुए नहीं है, होगा तो मैं बहुत अच्छी तरह से शेयर करने वाली हूँ। मुझे गुरु जी ने भी एक मैसेज में ऐसा था कि काम होने से पहले बोल देती है तो उसको नज़र लग जाती है, इसलिए मैं अभी तक बोल नहीं रही हूँ। लेकिन जो काम नहीं हो रहे थे उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन काम पूरा हो जाएगा बाद में मैं सत्संग में शेयर करूँगी। और इसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुबा आपका। आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आप है तो सब कुछ है। और मेरी पहली विश भी यही थी हमेशा गुरुजी कि मुझे आप चाहिए। मैं जहाँ भी रहूँ, जैसी भी रहूँ, आप जैसी स्थिति में आप रखोगे वैसी मैं रहने को तैयार हूँ। तो गुरुजी आपका उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, एक संगत समझा, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपकी बच्ची आपको हर पल शुक्राना कर दी। और आपकी बच्ची पागल है, जल्ली है, कमली है, जो भी है आपकी बच्ची है, आपने ही उसको चुना है। तो आपकी बच्ची आपके आशीर्वाद या आपके पाँव की एक रज भी समझ जाऊंगी तो मैं अपने को धन्य समझ जाऊंगी गुरुजी। और सत्संग में सुनना थोड़ी देर से समझती हूँ, कुछ नहीं जल्दी समझती हूँ। आपकी डांट भी आती है तो बहुत प्यारा लगता है, आपकी डांट आती है तो गुरुजी, क्योंकि हमारे पे हक जताने वाले कोई है, हमारी फिक्र करने वाले कोई है, वो भी देके भी न जताना, ऐसे महाशिव हमारे साथ है।
तो उसके लिए तो मैं कितना शुक्राना करूँ, कम पड़ जाएगा गुरुपा। तो कुछ तो एक छोटा सा भी कर्म अच्छा होगा तो आपने मेरा हाथ पकड़ा है, और पूरी संगत जी को भी आपने संगत बनाया है, उसके लिए भी मेरा कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुपा। और हमारी गलतियों को आप माफ़ करना गुरुजी। आप दया के महासागर हो, करुणा निधान हो। आपकी असीम 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 कृपा है हमारे परिवार पे गुरुजी। और अभी जब आप हो तो मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन पहले बहुत डरी हूँ मैं। 2 महीना डिप्रेशन में भी चली गई, मेरी तबीयत भी 5 किलो वजन भी कम हो गया गुरुपा, क्योंकि वो सब सुन सुन के रात को नींद भी नहीं आती थी, डरती थी। तो उसमें से आपने मुझे बाहर निकाला, उसके लिए भी शुक्राना 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 गुरुजी। अभी मैं ज़रा भी नहीं डरती हूँ। डरने का वजह भी यही था कि मैं अकेली थी, जो बच्चा मेरे साथ है वो भी आपको पता है कि उसका तो अपने में ही ऐसा रहता है, तो फिर वो मैं अकेली रह जाती, रोती 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 कब नींद आ जाती वो भी नहीं पता चलता था। और ऐसे सब सत्संग सुनती थी तो बहुत डर जाती थी। तो गुरुजी उसके लिए, उसमें से बाहर निकालने के लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और जब भी आपने हाथ पकड़ा है तो मुझे अभी कोई निसंदेह हूँ मैं, और मैंने अपने आप को आपको सौंप दिया है, मेरा परिवार आपको सौंप दिया है गुरुजी। कभी कभी आपको ऐसा लग जाता है कि मैं शक करती हूँ, ऐसा लगती हूँ गुरुबा आप पे शक करना या ऐसा सोच लेना, वो भी कैसे कर सकते हैं हम लोग? हम है कौन आपके सामने गुरुजी? तो ये सब नहीं है, लेकिन इंसान है तो कभी कभी दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा आता है। और अकेली एक पेरेंट्स से मैं सब कर रही हूँ। आपने बोल, आपका ही मैसेज है ना कि तेरे जैसा परिवार चलाने का एक जज्बा है तेरे में, क्यों डरती है? मैं बैठा हूँ, मैं तेरे नाल हूँ, मैं 24 से मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो ये सब सुन के अभी मेरे में हिम्मत आ गई है गुरुपा, और मैं अभी वही हिम्मत से जिंदा हूँ, और आपकी कृपा से ही जिंदा हूँ। माता रानी से पहले से बजती थी माता रानी, आज भी साथ में है, और अभी आपने भी हाथ थाम लिया तो माँ बाप दोनों मिल गए, तो मैं तो धन्य धन्य हो गई हूँ गुरुपा। और अभी मुझे कोई डर नहीं है, इसलिए उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। जैसे ही काम बनते जाएंगे तो मैं सत्संग में शेयर ज़रूर करूँगी गुरुपा, ज़रूर विस्तार से शेयर करूँगी। लेकिन जब तक पूरा नहीं होता है तब तक मेरे को पूरी लाइफ में भी अनुभव है कि पहले से ही मैं बड़बड़ कर देती हूँ, मेरे काम नहीं बनते, बनते बनते काम रुक जाते। इसीलिए मैं अभी शेयर नहीं करती हूँ। जैसे बन जाएंगे मैं तुरंत ही शेयर करूँगी आप संगत जी, आप सबसे। और गुरु जी है तो वो होना ही होना है, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा 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 विश्वास है। गुरु पर वो सब करेंगे। अब मुझे कोई डर नहीं है, अभी मुझे कोई शंका नहीं है। तो गुरु जी मैं कोई शंका नहीं करती, कुछ नहीं। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में। आपकी बच्ची कोई गलती कर दी है तो उसे माफ़ करना गुरुपा। आप मेरे पिताजी है, मेरे बंधु है, मेरे सखा है, तो आप मुझे माफ़ कर देना। और रात दिन आपका ही रटन रहता है, सुबह उठते ही आपका रटन रहता है, रात को सोते भी आपका रटन रहता है, दिन भर भी सत्संग सुनती हूँ गुरु जी। तो उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। एक अच्छी राह पे उंगली पकड़ के चलाना, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। फालतू में समय जाए उससे अच्छा आपने हमारा उंगली पकड़ के जो हमें हाथ थामा है, तो एक सही रास्ता दिखा रहे हो, एक अच्छे थॉट दे रहे हो, दिमाग में कोई गलत काम नहीं करने का थॉट दे रहे हो, और इतना अच्छा समझाते हो। इसीलिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नए शुक्राने के साथ वापस आऊंगी गुरुजी। संगत जी सभी को मेरा प्रणाम और मेरी गलती को माफ कर देना। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। बहुत समय से मैं सोच रहा था कि गुरु जी का सत्संग करूं,
गुरु जी का सत्संग करूं, परंतु गुरु जी की रिकॉर्डिंग का सिस्टम मुझे पता नहीं था। कल ही मेरी बिटिया ने मुझे गुरु जी की रिकॉर्डिंग करने का सिस्टम बताया और मैं आज सुबह गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना सत्संग कर भेज रहा हूँ। मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। मैं गुरु जी के साथ अपनी बिटिया के थ्रू जुड़ा हूँ। उसकी शादी में देर हो रही थी। मेरी बिटिया गुरु जी के साथ जुड़ गई। गुरु जी ने उसकी शादी ठीक ठाक अच्छे प्रकार उसके अनुसार कराई। अब उसकी एक बिटिया है, वह अपनी बिटिया के साथ अपने घर वाले के साथ खुशी खुशी रह रही है। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि कुछ ही दिन पहले मेरी मैडम से अलमारी बंद हो गई और अलमारी की चाबी उसमें रह गई। चाबी वाले को बुलाया, वो चाबी नहीं लगा पाया। फिर मैं अलमारी वाले पास गया। उसने कहा इसमें तो बहुत खर्चा आएगा। फिर मेरे एकदम गुरु जी के स्वरूप के ऊपर नज़र गई जो उसके ऑफिस में लगा था। मैं गुरु जी से रिक्वेस्ट की कि रास्ता निकालो। एकदम दुकानदार ने मेरे को बताया कि मेरे घर के साथ ही अलमारी वाले रहते हैं, उसका मैकेनिक ये काम कर देगा। फिर मैं उस अलमारी वाले पास गया, मैकेनिक से बात की और मेरे घर आया। उसने उस अलमारी को खोल दिया। गुरु जी की ऐसी कृपा है कि पल भर में ही वो हमारी समस्या का हल कर देते हैं। मेरा गुरु जी को सत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु ओम जी नमः सदा शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं गुरु पाक के चरणों में बैठी हूँ और अपना सत्संग शेयर करने। गुरु पाक का ब्लेस सत्संग और गुरु पाक की प्यारी बेटी आज गुरु पाक के चरणों में बैठी है सत्संग करने। ये शाम का बेला है और गुरु पाक भी हमारे अंग संग बैठे हुए हैं। आज 7 नवंबर है। गुरुपा बोल रहे थे कुड़िए आज 7 तारीख है, आज सत्संग जरूर करना, छोटी से ही करना पर करना जरूर। तो गुरुपा भी आज गुरुपा अपने घर में विराजमान है और गुरुपा कहते हैं जब सब चीज़ मेरे हाथ दे दी है तो चिंता करने की किलो कुछ नहीं करना है। बस गुरुपा को स्मरण करो और गुरुपा को याद करो। गुरुपा सब काम हौले हौले निकाल देते हैं और कुछ पता भी नहीं चलते हैं। तो आए दिन तो बहुत कष्ट तो आते रहते हैं। ये जिंदगी है तो ऊपर नीचे होती रहेगी और गुरुपा कहते हैं उससे डरना नहीं बल्कि अपने मन को इतनी मजबूत बना ले कि डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि गुरुपा तेरे साथ है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और गुरुपा के चरणों में पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा की प्यारी बेटी आज छठ पूजा है। छठ पूजा का पहली अर्घ है और मैंने सुबह उठी और अपने गुरुपा का सत्संग सुनने लगी, क्योंकि आदत है मेरी सत्संग सुनते सुनते सोना और सत्संग सुन के ही उठना।
अगर मेरे लिए मैसेज आता है तो वो देखती हूँ, अगर मेरे लिए सत्संग आता है तो मैं सत्संग सुन लेती हूँ। अगर अगर जपजी साहब का पाठ रहता है, सुखमनी साहब का पाठ रहता है तो मैं वो भी सुन लेती हूँ, मैं लगा देती हूँ। मैं आज सवेरे ही उठी, गुरुपा को जैसे बोलती हूँ, गुरुपा आजकल हमको सवेरे ही उठाते हैं, पर ये मैं ही हूँ गुरुपा की बदमाश बेटी जो जगती नहीं है, जग करके सत्संग सुनने लगती है, फिर आंखें बंद कर लेती हूँ। तो गुरुपा तो जगाते हैं, गुरुपा अपनी ड्यूटी करते हैं, पर मैं ही हूँ तो गुरुपा कहते छोड़, तेरे से तो होता नहीं है तो तू सो ही रहा, तो हमको छोड़ देते हैं। फिर मैं उठी सत्संग सुन करके, फिर मेरे अंकल जी भी जग गए, हम भी 5 बजे उठे, फिर हमने फ्रेश हुआ और फिर गुरुपा के सामने आकर के गुड मॉर्निंग बोली, और गुरुपा को बोले कैसे हैं गुरुपा, और मैंने गुरुपा के आगे से जल प्रसादी का, गुरुपा अब हमको जल प्रसादी देने का कष्ट कीजिए, दीजिए ब्लेस जल प्रसाद, ताकि मैं पी करके ब्लेस हो जाऊं। मैंने जल प्रसाद ली और पूरे घर से बाहर तक मैंने छींटे मारे पहले जल प्रसाद से, उसके बाद मैंने हल्दी पानी और थायराइड की दवाई खाई। मैं बीच में छोड़ दी थी, पर सत्संग में मैंने बार बार सुने कि जब गुरुपा सारी बीमारियां काट रहे हैं तो पूरी तरह से तो काट ही देंगे, पर थायराइड का गोली एक लेना है, उसे छोड़ना नहीं है। मैंने बीच में छोड़ दिए थे, गुरुपा हम लोग जल प्रसाद जब खाते ही हैं तो थायराइड का गोली नहीं खाना है, तो मैं छोड़ दी थी। और फिर मैंने सत्संग जब सुना तो लगता है गुरुपा जब सत्संग सुना रहे तो इसका मतलब मेरे लिए सुना रहे हैं, तो मैं इधर से 4-5 दिन से मैं थायराइड का गोली लेने लगी हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा का जितना होता है मैं करती हूँ, उपाय भी गुरुपा बहुत बताते हैं कि ये, मगर क्या करूँ गुरुपा, करते करते मैं भी परेशान हो जाती हूँ। इतने ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं गुरुपा, इतने आते तो मन में निगेटिव थॉट आने लगता है और मन डामाडोल होने लगता है। तो गुरुपा कहते हैं कुड़िए घबराई ना, जब मैं परीक्षा लेता हूँ तो पास भी तो मैं ही कराऊंगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा देखते भी हैं कि मेरी बेटी कितना जल्दी हारती है और कितना जल्दी सब्र रखती है। तो आज गुरुपा का मैसेज था, कुड़िए तेरे शरीर के अंदर कोई बीमारी नजर आती है, जब छोटी छोटी बीमारी से तुम घबरा जाती है तो बड़ी बीमारी कैसे तुम बर्दाश्त करेगी। तो कैंसर संबंधित आ रहा था, तो वो अभी मैं सुनी नहीं हूँ, तो मैं वो सिर्फ मैसेज पढ़ी, तो मैं सुनूंगी। और गुरुपा का आज का मैसेज ये भी था, कुड़िए तू चिंता बहुत करती है, चिंता ना कर, और तेरी बेटी बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, उसका चिंता छੱड दे, मैं उसके अंग संग हूँ, बस तुझे कोई चिंता नहीं करना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा का एक और मैसेज आया है, बेटी चिंता ना कर, भरोसा रख, तेरे तेरे लिए बेस्ट ही करूँगा, ये सुन। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का फिर मैसेज आया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आज जो भी तेनू चांदा मांग ले, आज तो जो मांगेगी वो मिलेगा। तो मैंने गुरुपा से कहा, तो गुरुपा बता रहे थे कल का मैसेज में कि कुड़िए मैं 7 तारीख के बाद मैं चला जाऊंगा, तो जो कुछ भी अरदास करना है तो कर ले। तो मैंने आज गुरुपा से यही अरदास की, गुरुपा जब आप चले जाएंगे तो हम बिखर ही जाएंगे गुरुपा, तो हम अकेले रह के ही क्या करेंगे, जब आप घर में ही नहीं रहेंगे गुरुपा, तो मैं क्या मांगूं गुरुपा, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ है ही नहीं गुरुपा। अगर देना होगा तो गुरुपा अपने चरणों की रस देना गुरुपा, अपने चरणों की प्रीति दात बख्शना गुरुपा, अपना प्यार स्नेह का जो ममता जो लुटाते हैं गुरुपा, मेरे सर पे हमेशा बनाए रखना गुरुपा। मैंने यही अरदास लगाई, और सर्वदा भला करना गुरुपा, आपके बगैर हम कुछ नहीं है गुरुपा। तो गुरुपा के चरणों में
छोटा सा ये बेटी गुनगुनाती है और दिल से यही निकलता है, तो गुरुपा कहते हैं कुड़िए तू गा ही ले। तो मैं गाती हूँ, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो सब कुछ हंसी है, कोई गम नहीं है, हर एक बेबसी बन गई चांदनी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है, टूटी है कश्ती तेज है धारा, कभी ना कभी तो मिलेगा किनारा, बही जा रहे हैं गुरु जी आपके प्यार में, इस प्यार के इसी प्यार करने की आशा जगी है, तेरा साथ है गुरुजी, फिर क्या कमी मुझे है, फिर कोई गम नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। फिर गुरुपा कहते हैं, गुरुपा का मैसेज आता है, तेरे सपने में ही काट रहा हूँ कष्ट, आज मैं तेरी हर परेशानी दा हल ढूंढ रहा हूँ, करना शुरू कर देता ये सुन, नज़रअंदाज ना कर तेरा गुरु हर वेले तेरे नाल बेफिक्र हो जा, बस इसी तरह अपनी मन संजो कर रखना, शुक्राना से अपनी राह रोशन रखना, तेरी जिंदगी दी किताब नवा पन्ना खोलेगी, तेनू सफल बनाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरुपा का ये इतना सारा, इतना ब्लेस और पॉजिटिव मैसेज सुन के तो मैं बल्ले बल्ले हो गई, मेरा दिल बाग बाग हो गया। गुरुपा भी देख रहे हैं और गुरुपा प्रसन्न है। और मैं जब बाहर गई थी उसमें बटरफ्लाई आई, और मैंने परसों मेरे रोटी में एक जो पीली जो बोलते मधुमक्खी बोलते हैं, बिरनी टाइप का जो होता है लंबा ऐसा जो डंक मारती, मैंने वो रोटी में देखी, बहुत बड़ी, वो एक नहीं 2 बार बने। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने उस दिन भी देखे तो हम उसे गौर ना करें तो माफ़ कीजिए गुरुपा। तो गुरुपा कहते कुड़िए मैं दर्शन देने आया था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज फिर गुरुपा दर्शन देने आए थे। तो जय गुरुजी। गुरुपा कहते हैं आज मैं बहुत खुश हाँ तेनू से। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके लिए भी गुरुपा। तो गुरुपा कहते आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तुझे मैं दर्शन देवांगा। तो गुरुपा शाम को जब मैं 4 बजे जब मैं घाट पे गई, तो वहाँ पे घाट पे गई तो उनके घर से, मतलब वो हमारे रिलेटिव नहीं लगते हैं, तो गुरुपा जैसे कहते हैं ना कि आप भी संगत बनाओ, आप जोड़ो, गुरुपा ही जोड़ते हैं, पर आप कहिए उनकी बड़ाई कीजिए। जिनको कष्ट है तो उनको भी बेबी नहीं है। तो मुझे भी लगा जब गुरुपा संसार को ब्लेस करते हैं, सबको ब्लेस करते हैं, तो गुरुपा उनके झोली भी चंगे चंगे कर दे और खुशियाँ दे दे। गुरुपा की बहुत बड़ी आई होगी। तो मैंने उसे भी अपने घर में जब सत्संग की थी उसे बुलाई थी। इसी तरह से वो पहले मेरे अंकल जी से है जान पहचान के, तो वो हम लोग को मौसा मौसी जी बोलते हैं। इसी तरह से तो मैं उनके घर गई थी। तो शाम को जब हम लोग घाट गए थे तो गंदगी तो थी,
मगर साफ भी किया गया था। तो कहते हैं उस समय तो गंगा माँ ही को समझना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो मैं वहाँ गई तो वहाँ पे बिछाया गया, फिर वो सूप में अर्घ दिए और नारियल में भी वो खड़े थे। वो एक सेवा के लिए खड़े थे, वो इसीलिए खड़े थे कि उसको बेबी ब्लेस हो, वो कष्ट कर रहे थे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उसी समय हम लोग जब घाट पे बैठे तो मैं यही सोच रही थी गुरुपा के साथ। गुरुपा को जब मैंने आज 7 तारीख है तो सत्संग बोले थे गुरुपा करने के लिए, तो मैंने सत्संग करके ही घाट पे गई। मैंने यहाँ पे आरती वगैरह करके तब मैं निकली। तो वहाँ पे गुरुपा को मैं यहाँ से बोली कि गुरुपा आप भी चलो, आप बैठे बैठे क्या करेंगे, आप बेटी के साथ चलिए और साथ लेके चलिए और साथ लेके आइएगा गुरुपा। तो गुरुपा के साथ हम लोग सब, मेरी आंटी और हम दोनों साथ हम लोग चले गए घाट पे। तो वहाँ पे जब मैं बैठी तो गुरुपा को याद कर रहे थे, गुरुपा आप आए हो ना गुरुपा। तो उन्हें कि नहीं, गुरुपा को ज़्यादा हमेशा नहीं बोलना चाहिए, ये सुनी सुनाई बातें नहीं, तू तो बहुत अच्छी है। तो मैंने पता नहीं दिल में आ गया गुरुपा यहाँ तो गंदगी, इसीलिए गुरुपा ने कहते गुरुपा, तो हमको मन में आने लगा। तो गुरुपा भी सोचते होंगे कहाँ कहाँ ये जाने खोजती है। तो घर में सब है तो मैं जान रही हूँ गुरुपा आप ही सब हो, गुरुपा आप ही छठ मैया हो, आप ही सब हो, सर्वस्व आप हो गुरुपा। फिर भी थोड़ी सी मन हो जाता है ना गुरुपा, अपना भी थोड़ा सा घूम फिर ले। तो गुरुपा के साथ हम लोग चले गए। तो वहाँ पे जब मैं हम लोग बैठी थी तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, हम लोग सब साथ में बैठे थे, बीच से हमारे एक वो भी आंटी बैठी थी, हमें बैठे बीच से गुरुपा निकले। जय, हमने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर एक ब्राउन कलर की फिर बटरफ्लाई आई, तो वो भी बोली हाँ गुरुपा हम लोग के साथ में है कि वो बता रहे हैं कि हाँ मैं भी साथ में हाँ। तो गुरुपा भी सोचते ही कहाँ कहाँ हमको ले जाएगी सब जगह जाएगी, हमको ढोते चले जाएगी। तो हमने गुरुपा हम नहीं ढोते गुरुपा, आप हमको लेते चलेंगे गुरुपा, आपके साथ चलेंगे। तो जय गुरु जी, गुरुपा इसी तरह से हम लोग को ब्लेस किए। उसके बाद थोड़ी देर वहाँ हम लोग बैठे, फोटो वोटो खिंचाए। उसके बाद वहाँ से आंटी के घर आए। आंटी के घर आए तो वो बोले बैठिए तो चाय वगैरह पी के जाइएगा। तो मेरा आज फास्ट था, मैं सवेरे चाय पी थी। और जब मैं गुरुपा का जब सत्संग की थी तो गुरुपा का चाय और प्रसाद, चाय और जल प्रसाद पी के गई थी। तो बाकी और कुछ नहीं, मेरी आंटी प्रसादा खाई थी और तब निकली थी। तो मैंने गुरुपा को कहा तो वो आंटी सफ़ेद मिठाई काजू की बर्फ़ी मेरी आंटी को खिलाई। तो मुझे डर लग रहा था। तो डर लगना नहीं चाहिए क्योंकि गुरुपा मेरे साथ है। तो मेरे मन में थोड़ा सा धुक हो रहा था क्योंकि मेरी आंटी वैसे भी चिड़चिड़ी हो गई है, बहुत अच्छी थी, पता नहीं दर्द बहुत हो रहा तो इसीलिए थोड़ा सा हो गया। तो हमको लगा पता नहीं गुरुपा से ये सत्संग भी सुनाए थे। तो मैं ध्यान नहीं दे रही, मैं आके यहाँ भावनाओं में बह करके बैठ गई, मैं भी चाय पी ली। तो मना भी नहीं कर सकी। तो मैं वहाँ पे गुरुपा का नाम ले करके और मेरे आंटी भी बोली हम भी भूल गए तो वो खा ही ली। तो मैं घर आए तो मैंने नहीं, देखो जल्दी से मोबाइल खोल कर कोई मैसेज गुरुपा भेजे होंगे मेरे लिए। तो गुरुपा बोल रहे थे चिंता ना कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, जो भी हो रहा है तो सब मेरे देख रेख में हो रहा है। तो जय गुरु जी। तो मन में थोड़ा सा राहत आए तो मैंने रास्ते से ही समोसा और आइसक्रीम लाई थी, 3 समोसा 3 आइसक्रीम लाई थी खरीद के। तो मैंने फटाफट लड्डू को आइसक्रीम दी और गुरुपा को समोसा और आइसक्रीम शाम को फिर लगाई। जोत मेरे जल रहे थे उसमें घी डाली और बाहर तुलसी में और गेट पे दिए जलाएं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का इतना प्यारा प्यारा मैसेज आने लगा। फिर मैं भी, मुझे भी भूख लगी थी, सुबह से नहीं खाई थी। फिर मैंने गुरुपा का प्रसाद ही खाए। फिर मैं जब ले जाने लगी मैंने भुजिया और शक्करपाला भी लगाई थी भोग। और जब मैं सत्संग करने बैठी तो मैं एक दिन पहले ऐसे ही गुरुपा को बगैर नमक का ही मखाना का भोग लगाई थी। तो गुरुपा का एक मेरे मन में थॉट आया कि आज गुरुपा का खाने का मन था, सरसों की साग और चावल के आटे का रोटी। तो मैंने अंकल को बोले लाने के लिए। तो आज पर्व का दिन है तो फल वगैरह मिलता सारा बंद था, तो सरसों का साग नहीं मिला, पालक का साग मिल रहा था।
तो वो छोड़ दिए, तो नहीं मिला। तो मेरा मन था कि आज सत्संग में सरसों की साग और चावल की रोटी यही लंगर बना देंगे गुरुपा के लिए, पर वो मिली नहीं। तो लगता है गुरुपा का भी मर्जी नहीं होगा आज खाने का, तो नहीं बना सकी। तो थोड़ा गिल्टी फील हमको हुआ। तो गुरुपा सब हमको पॉजिटिव पॉजिटिव बोले, तो हम लेके आज मेरे साथ बहुत हुआ। तो अब मैं नहीं मानती कि ये कुछ हुआ, अपशगुन हुआ, अच्छा नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ। मैं हमेशा ये पॉजिटिव सोचती हूँ कि नहीं, गुरुपा कहते हैं ऐसा नहीं होता। अगर दिया भी बुझ जाता मैं फिर दोबारा जला लेती हूँ कि नहीं कुछ नहीं हुआ, जो भी मेरा कष्ट था तो वो कट गया, अब फिर से जलाती हूँ, अब पॉजिटिव हो गया। मैं ऐसा करके जब निगेटिव आता है मैं पॉजिटिव करने की कोशिश करती हूँ। बस गुरुपा ही करवाते हैं, मैं नहीं करती। सॉरी गुरुपा। आज मेरे साथ क्या हुआ, मैं किचन में ले गई गुरुपा का प्रसादी, तो मेरे पता नहीं कैसे मैं अच्छे से ले गई, तो मेरे हाथ से वो भुजिया वाला और शक्करपाला वाला टिफिन हाथ से छूट गया और ज़मीन पे किचन के फ्लैश पे बिखर गया। तो हमको बहुत ये होने लगा, अब गुरुपा का प्रसादी बिखर गया। तो फिर मेरे मन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरुपा कोई ऐसा कष्ट था जो प्रसादी के जरिए अपने ऊपर ले लिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं उसके लिए भी नहीं की, मैंने उसे समेट ली। तो मैंने एक सत्संग में सुना था, जब रोटी नीचे गिर गया तो गुरुपा कहते हैं ये चींटियों को या गाय को वो खाना दे देना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। वो आपके लिए गुरुपा नहीं बल्कि उन लोगों के लिए ब्लेस किए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैंने वो खाई नहीं, फिर हमको लगा इतना सारा प्रसादी है, अपमान होगा। तो मैंने गुरुपा के आगे 2 चीट बनाई, खाना है या मेरे कष्ट कट गए हैं गुरुपा कि नहीं खाना है। तो मैंने एक बार उठाया तो खाना है, तो बोले गुरुपा खाना है, तो बोले एक बार और उठा लेते हैं। दूसरी बार उठाए तो नहीं खाया, तो बोले गुरुपा ये क्या हुआ, नहीं यार हाँ। तो हम तो कन्फ्यूजन हो गए गुरुपा। तो हम कहते गुरुपा को तिलिया के 3 दान। तो हमको तीसरी बार उठाया तो उसमें नहीं खाना, तो बोले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी जो मर्जी। तो वो मैं सवेरे चिड़िया को डाल दूंगी, चिड़िया भोग लगा लेगी। आज का मेरा सत्संग यही था। गुरुपा हमारे घर में आए हैं, गुरुपा कहे हैं कुड़िए आज तुझे दर्शन देवांगा। तो आज फिर गुरुपा दर्शन देने आए हैं बटरफ्लाई के रूप में। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो गुरुपा यहीं पर है, दीपावली में भी आए थे और गुरुपा आज भी बोले थे। तो गुरुपा तो आप जाना नहीं हमको छोड़ के, आप जहाँ जाएंगे तो वहाँ अपनी बेटी को लेते चलिएगा, पर जहाँ आप रहिए जिस घर में उसी घर में हमको रहना है गुरुपा, आपके बगैर हम कुछ नहीं है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। आज का ब्लेस सत्संग। और गुरुपा कहते कुड़िए तू देखती जा, अब तेरे साथ सत्संग ही सत्संग होंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा की प्यारी बेटी और झल्ली बेटी भी गुरुपा कहते हैं शिव पुराण पढ़ने के लिए। तो मैं शिव पुराण पढ़ती भी नहीं है, मेरे पास बुक भी नहीं है। एक बार तो गुरुपा जब मेरे मन में ऐसा आया कि शिव पुराण सुनना है तो बुक भी दिखा दिए। एक आंटी बुक तुरंत दिखाई, इससे लग रहा गुरुपा मेरे मन की बातें सुन ली, तुरंत मन में चल ही रहा था, सुन लिए। आज सवेरे भी सत्संग किए। आज सवेरे का सत्संग तो मैंने आंटी वाली बताया ही नहीं। आज मैं सवेरे नहाई नहीं, आज आंटी को बोले सवेरे नहा करके पूजा कर देना, मैं थोड़ा लेट से नहाऊंगी। तो क्योंकि आज तो हमको खाना नहीं है, तो खाना वगैरह बना के नहाएंगे। तो मेरे आंटी नहाई और लड्डू को भी नहा करके, गुरुपा को भी स्वरूप को साफ करके भोग लगा दी, दिए भी जला दी और जलाई। और मैंने लगा दिए थे, सत्संग लगा दिए थे, तो चल रहा था, शबद चल रहा था। तो वो खत्म हो गया, आरती भी हो गया। तो मेरे आंटी का उस समय पूजा भी खत्म हो गया। तो मैंने अपनी आंटी कहे थे कि आज गुरुपा बोल रहे थे आज जो जो मांगेगी सो सो मिलेगा, तू जा, तू पढ़ती नहीं है ना, तो आज गुरुपा के साथ थोड़ी देर बैठो जा करके और गुरुपा से बातें करो, क्योंकि गुरुपा को भोग लगाई हो ना, तो हम पाठ करते हैं। तो आप यहाँ पे बैठ करके गुरुपा के पास से बैठो थोड़ी देर। तो मेरी आंटी आई बैठी और मैंने वो बैठी, तो मैंने आके झांकी तो मैं नाश्ता बनाने लगी।
पराठा और आलू गोभी की सब्जी बनाई गीली वाली, और मूली के पत्ते की भुजिया बना रही थी। तो मैंने कहा जब तक तुम बैठो हम तब तक नाश्ता बनाते हैं। तो मैंने बनाई। तो पहले गुरुपा को भोग लगाने के लिए तो मैंने पहले किचन में ही लगाती हूँ। तो मैंने कि नहीं, आज आंटी बैठी है तो मैं यहीं पूजा रूम में भी लगा देती हूँ। तो मैंने आंटी को कहा यहाँ पे बिछा दो और गुरुपा को दो, तो भी बैठी है। तो गुरुपा तुम बातें भी करो और गुरुपा अपना भोग भी लगा ले, नाश्ता भी कर लेंगे। गुरुपा को भी अच्छा, आज मेरी नाती मेरे साथ बैठी हुई है तो मैंने यहीं पे ला करके लगाई। अब फिर मेरे मन में ऐसा है कि जैसे लगता है गुरुपा ही बोले आज अपनी नातिन के साथ नाश्ता करेंगे। तो मैंने आंटी के लिए भी पराठा और सब्जी ला के दी। तो गुरुपा और मेरे आंटी दोनों गुरुपा के साथ नाश्ता किए फिनिश। तो बोली नहीं मम्मी हमको भूख नहीं है, जब देने लगे तो नहीं खाना, बाद में खाने से। ठीक है एक ही खा लो, गुरुपा के साथ खा लो। तो गुरुपा के साथ बैठी तो खाने लगी। तो बोल रही है मम्मी एक पराठा और देना। तो गुरुपा है तो गुरुपा कहते हैं एक रोटी से कहीं पेट बढ़ेगी, इतनी बड़ी लड़की है। तो गुरुपा उसको फिर एक पराठा दिलाए। तो वो खाई। जब मैं सब्जी बनाते कहती मम्मी आज मैगी बन रहा है। उनकी हाँ मैगी। उनके यहाँ गुरुपा कह रहे आज तुम इतना सेवा कर रही हो गुरुपा, तो इसीलिए इसको अच्छा से नाश्ता कराओ, अच्छी सब्जी बनाना। इसीलिए गुरुपा तेरे लिए अच्छा सब्जी बना रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का ये सत्संग था तो दोनों मिलके नाश्ता किए और मुझे भी अच्छा लगा। फिर वो जब आंख बंद करके देखें वो प्रार्थना कर रही थी, इतनी अच्छी से कर रही थी। तो हम सोचे जब गुरुपा के साथ बैठी हुई है तो मैं कुछ शब्द लगा देती हूँ, इस बहाने वो बैठकर गुरुपा के साथ शब्द सुन लेगी। तो मैंने शब्द लगाया। तो उसमें शब्द में चल रहा था सिमर सिमर जो मांगा, जो मन से मांगो वो मिलता है। गुरुजी देते हैं, गुरुजी सुनते हैं अरदास, गुरुजी सुनते हैं तो कर लो तू अरदास, गुरुजी सुनते हैं। मैंने ये सोच के नहीं लगाया, अगर लगाया यही वाला सत्संग है तो गुरुपा तो आपको ठीक कहते हैं। गुरुपा आपका हर सवालों का जवाब मिलता है शब्द में। तो मेरे आंटी की बैठी हुई थी, मैंने कहा अपनी पढ़ाई के लिए गुरुपा को बोलना जब मैं पढ़ूं तो मेरे साथ बैठना, गुरुपा से बातें करना, तुम अपनी जो भी तुमको लगता है दिक्कत वो गुरुपा से शेयर करना। और किससे करोगी, गुरुपा को भी अच्छा लगेगा। तो वो शेयर कर रही थी और मन ही मन करती होगी। तो गुरुपा फिर बहुत तरह का शब्द तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर बहुत अच्छा शब्द आज जो भी नहीं सुना आज सब शब्द सुनाए गुरुपा। ऐसा लग रहा था सब जो मेरे मन में सवाल उठ रहे हैं गुरुपा उसका जवाब दे रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, जय गुरु जी। बिन बोलिया सब कुछ ध्यान दा, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब अगला सत्संग आगे की मैं तैयारी करूंगी क्योंकि गुरुपा जो बुलवाएंगे वो बोलेंगे। अब कल के लिए सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।